Hello students, now we are going to discuss what is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. First we will start with relation between the zeros and coefficients of a linear polynomial. In the previous class you have already learnt about zeros of a linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. In this case you can see this one is the expression of linear polynomial, okay, ax plus b. Here the highest power of x is 1. Now we need to find out 0 of this particular polynomial. For that we have one formula, minus b by a. What is b here? B is the constant term and a is the coefficient of x. You can also see 0 of polynomial is equal to minus of constant term divided by coefficient of x. Let us take an example, like I have taken 4x plus 3. So if you need to find out 0 of this particular polynomial, here a is equal to 4 and b is equal to 3. Therefore 0 of this particular polynomial will become minus b by a. In place of b I will write 3. So minus 3 divided by, in place of a we will write 4. So 0 of this particular polynomial is minus 3 by 4. Next we will see how to find 0 of a quadratic polynomial. Okay. So here we will begin with, let us take alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial, which is p of x is equal to ax square plus bx plus c. This is the expression of a quadratic polynomial. हमें यहाँ पे assume करना है x minus alpha और x minus beta इसके factors हैं. After that we can write ax square plus bx plus c is equal to k. K here is a constant. It can be any value. और यहाँ पे x minus alpha, x minus beta क्या है, उसके factors हैं. उसके बाद हम ये brackets open करेंगे, आपके पास ये expression particular मिल जाएगा. Okay, and then in the next step we will compare the coefficients. Like here the coefficient of x square will be compared, next the coefficient of x will be compared, and the third one constant values will be compared. In the first case coefficient of x square is a and here it is k. So I have written k is equal to a. Next coefficient of x is b and the coefficient of x is minus of k alpha plus beta. So I have written here. And the last one is c is equal to k alpha into beta. So we have written the third one. Now if you can see k is any constant, so we can equate k as a. So in this case we get k is equal to a. Now put this value here. B is equal to minus of a into alpha plus beta. So basically what we will get, alpha plus beta is equal to b by a minus b by a. तो ये आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का. आप जानते हो यहाँ पे हम जो भी फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज x minus alpha and x minus beta. In that case whatever value of alpha and beta you are getting, that will be the root of that particular equation, or you can say 0 of that particular equation. And this one is the formula to find out sum of zeros. Okay, and the second one is k alpha into beta is equal to c. Again we will put a in place of k. यहाँ से आपको मिल रहा है, हमने यहाँ पे a put किया. Then what we are getting, alpha into beta is equal to c by a. C is the constant value and a is the coefficient of x square. I have explained this one here. Now you see, so what we are getting, sum of 0 means what, alpha plus beta is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. This is called minus b by a. And the second one is alpha into beta is equal to constant term divided by coefficient of x square. तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है. क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है फाइंड द जीरोज ऑफ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप. इस क्वेश्चंस को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड वन इज
relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Cubic polynomial means what? The highest power of variable must be 3. Okay, in that case अगर आपके पास cubic polynomial है then we have 3 zeros like alpha, beta and gamma. Okay, and this is the expression for a cubic polynomial where a, b, c and d are the constant values. सिमिलरली जैसा हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, हियर ऑल्सो वी हैव टेकन 3 फैक्टर्स. सपोज इस एक्सप्रेशंस के जो हमने सॉल्व करने के बाद हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे, लेट अस टेक x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. अगेन वी विल इक्वेट बोथ द वैल्यूज. दिस वन इज द इनिशियल एक्सप्रेशन एंड दीज आर द फैक्टर्स. आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद वेन एवर वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. ओके, नाउ अगेन वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट्स. सबसे पहले हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द लास्ट वन इज वी विल इक्वेट द कांस्टेंट टर्म. आप इक्वेट करके क्या देखते हो, हियर वी आर गेटिंग k इज इक्वल टू a. आप देख सकते हो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर k है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a है. सो हियर वी आर गेटिंग k इज इक्वल टू a. इसको हमने नोट कर लिया. कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, स्मॉल a. नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम इक्वेट कर रहे हैं, हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है उसके लिए. थर्ड वन इज वी आर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स c and this particular expression, that is k alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. Okay, and the last one is we will have to equate the constant term. D will be equal to minus k alpha beta gamma. Now you can see k is equal to a हमें मिल चुका है. We will put the value of k in the next expression, means in place of k we will write a here. So you will be getting alpha plus beta plus gamma is equal to b by a minus b by a. तो ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन जाता है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. एक्सप्रेशन देख के आप पता कर सकते हो कि आपका ए, बी, सी एंड डी की वैल्यूज़ क्या होंगी. सिमिलरली नेक्स्ट वन यू विल हैव when we equate the third expression we are getting a into alpha beta plus beta gamma gamma alpha is equal to c. यहाँ से आपको मिल जाता है सेकेंड फॉर्मूला. इन दिस केस alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is the second expression. So this is constant by coefficient of x cube. And the last one is product of zeros. So alpha beta gamma will become minus d by a. आप एक्सप्रेशन से मैच करके देख सकते हो. d is the constant term and a is the coefficient of x cube. After that there are three points. I have written 3 cases to obtain a polynomial whose zeros are given. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं जब आपके पास ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा या गामा की वैल्यूज़ दी हुई होती है. आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल और अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर आपका इस अभी 10th स्टैंडर्ड में नहीं है. सो बेसिकली यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. सपोज केस वन इज व्हेन अल्फ़ा इज़ गिवन. आपके पास पहला वो जो उसका अल्फ़ा रूट है वो गिवन है. देन इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द लीनियर पॉलिनोमियल देन द फॉर्मूला इज एक्स माइनस अल्फ़ा. सिंपली इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा यू नीड टू पुट द पर्टिकुलर गिवन वैल्यू. ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके पास 2 ज़ीरोज़ दिए हुए होंगे. Then we will form a quadratic polynomial. So p of x will become x square minus alpha plus beta. What is alpha plus beta? This is the sum of zeros into x plus alpha into beta. This is the product of zeros. तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. उसी तरह से केस 3 अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर गिवन. अगर आपके पास 3 रूट्स दिए हुए हैं and then if you are asked to form a cubic polynomial then
The formula is x cube minus sum of zeros into x square. ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स ये आपके फॉर्मूला में हमेशा लिखना होगा आपको. एंड दीज आर द वैल्यूज़, गिवन वैल्यूज़. आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा पुट करोगे, यहाँ पे भी पुट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे, देन you can form the cubic polynomial. Now we are going to solve some questions. Problem based on finding the zeros and verifying the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. Here we will see the first question is find the zeros of the quadratic polynomial. This is the quadratic equation. Let me begin with let p of x is equal to x square plus 7x plus 10. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना होगा. और ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या जानते हो, वी विल हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. इन दिस केस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x आप जानते हो ये क्या होता है 7x. ओके, एंड ऑल्सो 5x इंटू 2x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर. यहाँ पे हमारा सम 7x आ रहा है और x स्क्वायर इंटू 10 इज़ 10x स्क्वायर, तो इनका मल्टीप्लाई भी हमारे पास 10x स्क्वायर आ रहा है. सो द स्प्लिटिंग विल बी 5x प्लस 2x प्लस 10. अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x, सो वी आर गेटिंग x प्लस 5. यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2, देन वी आर गेटिंग x प्लस 5. और जो कॉमन ब्रैकेट्स को उस हम एक बार फिर से कॉमन लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे x प्लस 2. नाउ वी विल राइट p ऑफ x इक्वल टू 0. क्या होगा यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा. ऑल्सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आपको x की वैल्यू क्या मिल गई -5 और एक x की वैल्यू आपको क्या मिल गई -2. सो दीज आर द zeros of given quadratic equation. Let us assume it as alpha equal to -5 and beta is equal to -2. अब हमारे पास आता है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा आपको, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो अभी हमने डिस्कस किया था. सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला क्या है हमारा -b/a. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अब हम इक्वेशन को देखते हुए वैल्यूज़ पुट करेंगे. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -2. यहाँ हम देखते हैं माइनस b मीन्स व्हाट, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो वी विल राइट -7. ओके, एंड a इज़ व्हाट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है, इसको लिखा हमने 1. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो. -5 -2 इज इक्वल टू ये हमारा बन गया है -7. इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है -7. दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS. ये हमारा हुआ फर्स्ट वेरिफिकेशन. ठीक है, अब हम सेकेंडली वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. c मतलब कांस्टेंट टर्म एंड a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अल्फ़ा की वैल्यू फिर से हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास. अल्फ़ा हमारे पास -5 है, बीटा हमारे पास -2 है. तो अल्फ़ा की जगह पे हमने लिखा -5 और बीटा की जगह पे हमने लिखा -2. कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारा 10. तो c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 1, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10/1. अब आप मल्टीप्लाई करो LHS को. -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल गेट 10 and RHS is also 10. So since LHS equal to RHS, तो हम क्या लिखेंगे, therefore relationship between coefficient and zeros are verified. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट को लेके.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस केस में क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ गिवन होगी, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। सो वी विल स्टार्ट। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये अल्फ़ा और बीटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मेंशन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन। सो -3 इज सम ऑफ ज़ीरो एंड 2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -3, एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है आपके पास, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, इट इज़ 2। अब हम क्या जानते हैं, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हमने x² लिखा माइनस सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपके पास यहाँ पे x² है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। हमेशा जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू माइनस में होती है आप उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, अदरवाइज़ आप इसको ये वाला माइनस आप मिस कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, देन x² प्लस 3x प्लस 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर इजीली मिल गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं, अगर सपोज़ हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज 3 ज़ीरोज़ आर 3 - 1 एंड -1/3। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, वहाँ पे हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन था, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन है, यहाँ पे सम प्रोडक्ट या फिर दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट ऐसे ये गिवन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलता है, हमारे पास सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3, बीटा इज़ इक्वल टू -1 एंड गामा इज़ इक्वल टू -1/3। हम रैंडमली इसको अल्फ़ा बीटा गामा हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो हमें, आपको पता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होने के लिए क्या होगा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, टू फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम सबसे पहले फार्मूला पे ध्यान देते हैं कि हमें आखिर इसके लिए क्या चाहिए। ठीक है, वी हैव डैश, क्या फार्मूला है हमारे पास, आपने अभी पढ़ा था, आपको यहाँ पे x³ लिखना होता है माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, मतलब इन दिस केस वी हैव 3 ज़ीरोज़, देन x²। ठीक है, बीच में प्लस के साइन है, देन आपको प्रोडक्ट लेना होता है दो का, अल्फ़ा बीटा देन बीटा गामा एंड द लास्ट वन इज़ गामा अल्फ़ा। ये मल्टीप्लाई होता है आपका x के साथ, अगेन देयर इज़ अ साइन ऑफ माइनस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अभी हम इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, और हमें प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत है। तो हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिंपली आप वैल्यू पुट करो, 3 प्लस -1 एंड प्लस -1/3। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 3 -1 -1/3। हम यहाँ पे इसको एलसीएम लेते हैं, आपको मिल जाता है 9 - 3 -1। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, क्या मिलेगा आपको, -3 और -1 मिलके क्या हो जाता है, -4/3। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 5/3। तो ये हमारी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए। इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं क्या, ये वैल्यू सेकेंड टर्म के लिए जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 zeros, देन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ज़ीरो, एंड द लास्ट वन इज़ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड
लास्ट ज़ीरो ओके। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे उसके बाद, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फ़ा। आप सिंपली ध्यान से वैल्यूज़ देखो, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है, और गामा हमारे पास -1/3 है। इसी तरह से फिर से हमें गामा की वैल्यू पुट करनी है -1/3, और अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 3 है ओके। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो आपका 3 और 3 है ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × -1 इज़ -3, -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई -1/3, इट विल बिकम 1/3, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास बचा -1। इसे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया 3 × 3 इज़ -9 प्लस 1, 3 × 1 इज़ -3। यहाँ से आप सॉल्व करो, माइनस माइनस नेगेटिव को हम इसको ऐड करते हैं, -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, -11/3। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर द सेकेंड टर्म। एंड द लास्ट वन इज़ अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, -1 × -1 विल बिकम +1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया अल्फ़ा बीटा और गामा की। अब हम शुरू करते हैं इसे पुट करना। x³ विल बी रिटन एज इट इज़। अब हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की हुई है, 5/3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 5/3 x² प्लस, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो -11/3। तो यहाँ पे हम इसको पहले ब्रैकेट में लिखते हैं -11/3 इंटू x, और लास्ट में हमारा अल्फ़ा बीटा गामा क्या मिला है हमें, 1। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम 3, यहाँ पे हमें एलसीएम हुआ, देन वी आर गेटिंग 3x³ - 5x², सॉरी -11x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इसे हम इक्वेट करते हैं f(x) = 0 से। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा आपको 3x³ - 5x² - 11x - 3 डिवाइडेड बाई 3, इसे इक्वेट करेंगे हम 0 से। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो होगा हमारे पास 3x³ - 5x² - 11x - 3 = 0। So this is the required polynomial। इसी तरह से आप और भी सम्स सॉल्व कर सकते हो। Now all of you understood what are the relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. Now these are some questions, you need to solve these questions in your homework copy and it is compulsory। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने डाउट्स मुझे पूछ लेना।